So in the last class, we basically discussed genetic drift and हमने founder effect और हमने bottleneck effect की बात की थी. Today we will be talking about the concept of speciation. Now, speciation is basically what? It's basically the formation or the origination of new species. So as the word speciation goes by, it's a very self-explanatory term, which is the formation of new species. Now, speciation is like a very extended form, or you can say that natural selection का जो बिल्कुल एंड स्टेज होता है या एवोल्यूशन का जो बिल्कुल एंड स्टेज होता है दैट इज रेफर्ड टू एज स्पीसीएशन. नेचुरल सिलेक्शन में हम क्या कह रहे थे? नेचुरल सिलेक्शन में ये हो रहा था कि हमारे पास एलील फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम चेंज हो रही थी. ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई ओवर मेनी जनरेशन चेंज हुई. इतना चेंज हो जाना कि हमारे पास एक बिल्कुल नई स्पीशी इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन नमूदार हो जाए, उस फिनोमिना को हम स्पीसिएशन बुलाते हैं. Natural selection does not always lead to speciation, but in some cases, over many centuries, over many thousands of years, it is possible that natural selection and evolutionary changes lead to speciation, formation of new species. Okay? Now, we need to understand the term species first. What exactly is species? Achaji, humans are one species. Can you guys tell me on what basis do we identify or do we categorize all the humankind as one single species? On what basis? What are the bases to classify all humans as Homo sapiens, all humans as one single species unit? They can breed to form fertile offsprings. ठीक है? What other measures, what other similarities we might have? Okay, let's say हमारे पास it's end of the world and they're the last two surviving people on planet Earth and they're of the same gender. ठीक है, there are two maybe men or there are two women. Looking at them, now they cannot interbreed to produce a fertile offspring. They can't, right? So अगर हम ये नहीं प्रूव करवा सकते दो सेम जेंडर के लोगों को देखकर कि वो एक सेम स्पीशी है from the process of interbreeding, then what other measures or what other similarities do we share as humans? Can we say that our anatomy, our structural framework is same? हमारा एग्जैक्टली बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसको मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल फीचर्स बुलाते हैं. सो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं. A species share species share then if we talk about the physiological processes, हमारी बॉडी में जो reactions होते हैं, जो chemical processes होते हैं, वो भी similar होता है. So the physiological processes, the physiological features across all humans, they are also same. फिर अगर हम मोलेकुलर बेसिस पे चले जाएं, मोलेकुलर बेसिस की जब हम बात करते हैं, सो वी टॉकिंग अबाउट द डीएनए. जब हम बात कर रहे हैं मोलेकुलर बेसिस की, वी talking about the proteins which are being formed through the DNA from the expression of the genes in the DNA. तो हमारे पास जो molecular basis भी हैं humankind की, are they also similar? Do we share the same molecular basis? मोलेक्युलर बेसिस को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल फीचर्स बुलाते हैं कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं they're also similar. So we have similar morphological features, physiological features, biochemical features. अच्छा, अब ये जो मैं टर्म लिख रही हूँ ना, ये बहुत वेग और ये बहुत जनरल टर्म है. Now to say that a particular group of species share the same behavioral features, now this is a very vague and a not accurate way टू से कि हमारे पास अगर सेम बिहेवियर है तो स्पीसी होगी, मतलब एक ही स्पीसी में कैटेगराइज कर देंगे, बिकॉज बिहेवियर इज वेरी डायनामिक, behavior is very general and it can change, right?
सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ बिहेवियरल फीचर, हमारा जो मेन फोकस है, हमने आसान करने के लिए क्या कर दिया, ब्रीडिंग सीजन कैसा है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारा कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, वी कैन ब्रीड, वी कैन मेट थ्रू आउट द ईयर, बट सम mammals they basically have particular breeding seasons, like cats का अपना एक ब्रीडिंग सीजन होता है, बाकी एनिमल्स देख लें, फिशेस की अगर हम बात करें उनका अपना ब्रीडिंग सीजन होता है। एक तो ब्रीडिंग सीजन एक बहुत अहम बिहेवियरल फीचर होता है, और ये एक स्पीशी का अक्रॉस ऑल मेंबर्स सेम ही होगा। और मेटिंग बिहेवियर, हाउ डू दे मेट, ये दो बिहेवियर्स अगर से हमें नजर आ रहे होते हैं कि ये सिमिलर होता है, सेम होते हैं एक स्पीसी की कैटेगरी के अंदर। However, the gold standard of calling a particular organism, grouping a particular organism in the species bracket is what Michelle said, which is that species are basically is defined as those organisms which can interbreed, and when they interbreed, they can produce fertile offsprings. That is basically the most appropriate definition of speciation. So the ability to interbreed and to produce fertile offspring is basically the gold standard to classify different members into a specific species. So अगर दो organisms हैं, उनको हम इंटरब्रीड करवाएं, सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग हो उनकी, और उस इंटरब्रीडिंग के नतीजे में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसी। ठीक है। नाउ दूसरी एक और चीज ये होती है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स को अगर मैं साथ रख दूं, और वो दो ऑर्गेनिजम्स अगर ब्रीड नहीं कर सकते, वो मेट नहीं कर सकते, सो वी वुड से दैट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। So for example, let's say if I put a human and a cat together, or if I put a cat or a dog together, ये दो डिफरेंट स्पीशीज है, और ये दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में मेट नहीं कर सकते, आपस में ये रिप्रोडक्टिवली कंपैटिबल नहीं है। अ डॉग एंड अ कैट aren't reproductively compatible, a human and a cat aren't reproductively compatible, and because the two different species are not reproductively compatible, they cannot reproduce together, they are said to be reproductively isolated from one another. Is this clear? Any questions? Okay. फिर सवाल ये उठता है कि हमारे पास स्पीसिएशन कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज कैसे होती है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो स्पीसिएशन का कॉन्सेप्ट है, जो ओरिजिनेशन ऑफ न्यू स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली ये है कि हमारे पास ओरिजिनल स्पीशी की पॉपुलेशन से नई स्पीसीज बनता है। सो इट्स नॉट लाइक न्यू स्पीसीज आर raining like cats and dogs. It's they're not coming straight from the sky कि okay कल तक नहीं थी, एक alien आया और wow we have a new species in the market. The theory of natural selection says कि हमारे पास जो नई species भी बनती है ना, वो पुरानी species से ही बन रही होती हैं। Now how is that possible? हमारे पास बेसिकली जब दो चीजें हो जाती हैं, दैट इज व्हेन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीसिएशन होती है, एंड वो दो चीजें क्या होती हैं। अगर हमारे पास बिटवीन similar species, between species, say within species, if reproductive isolation and genetic isolation takes place, that is when the development or the production of new species would happen. Now, सबसे जरूरी है reproductive isolation और genetic isolation को समझना। Let's say हमारे पास species A है, ठीक है, ये species है, and we have a species B. Now, अगर हमारे पास these two species they do not reproduce together, they are unable
to mate, they are unable to reproduce together, they would be considered as reproductively isolated. सो जब हमारे पास दो स्पीशीज के दरमियान रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं. सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन स्पीसिएशन टेक्स प्लेस. और अभी हम जब केस देखेंगे तो हमें और क्लियरली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन समझ आ जाएगी. जेनेटिक आइसोलेशन का क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास ए एंड बी कुड रिप्रोड्यूस, ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. द रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल, इंटरब्रीडिंग इज पॉसिबल. जब भी दो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जब भी दो ऑर्गेनिजम्स मेट करते हैं और उनसे एक ऑफस्प्रिंग, लेट्स से ऑफस्प्रिंग सी प्रोड्यूस होता है, सो कैन वी से दैट हमारे पास इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जीन फ्लो हुआ है? कैन वी से दैट जीन फ्लो हैपेंड? कि इस ऑर्गेनिज्म की जो जीन्स थी, ऑर्गेनिज्म ए की और ऑर्गेनिज्म बी की, वो बेसिकली कहाँ पे फ्लो कर गई? ऑर्गेनिज्म सी में फ्लो कर गई. नाउ इफ दिस जीन फ्लो इज स्टॉप्ड, अगर ए और बी के दरमियान हमारे पास रिप्रोडक्शन नहीं होती, हमारे पास मेटिंग नहीं होती, तो अगर ए और बी के दरमियान क्या कहते हैं, जीन एक्सचेंज नहीं हो रहा, गमीट्स फ्यूज नहीं हो रहे, तो क्या हमारे पास कोई जीन फ्लो पॉसिबल होगा? इफ देयर इज नो मीटिंग, इफ देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गमीट्स, इज देयर एनी जीन फ्लो? So this is basically genetic isolation. When there is no exchange of genes between two organisms, उसको हम बुलाते हैं genetic isolation. Now, क्या ऐसे factors होते हैं which lead to reproductive isolation and to genetic isolation? वो अभी हम understand करेंगे. Yes, मुताहर? Okay. हमारे पास जब भी mating होती है तो हमारे पास gene flow होता है, मुताहर? Now, अगर हमारे पास मीटिंग नहीं हो रही दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान फॉर वट एवर रीजन, वो रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन करेंगे. बट अभी के लिए बहुत सर्विस लेवल पे अगर मैं आपसे कहूँ कि दो स्पीशीज के दरमियान मीटिंग नहीं हो रही, कोई जीन फ्लो नहीं हो रहा, so when there is no exchange of genes happening between two organisms, we would say that these two species are genetically isolated. Why? Because हमारे पास there is no जीन फ्लो और नो एक्सचेंज ऑफ जीन्स. तो अगर हमारे पास जीन फ्लो नहीं है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं हो रहा, तो हमारे पास दिस मीन्स कि ये अब हमारे जो स्पीशीज हैं ये डिफरेंट स्पीशीज होगा. Is this making sense? There was another question in the chat box. Let me see that. So reproductive isolation leads to genetic isolation. Yes, कह सकते हैं. Because reproductive isolation is the inability of species to breed successfully. ठीक है. और हमारे पास जेनेटिक आइसोलेशन इज व्हेन देयर इज नो जीन फ्लो. अच्छा, ये भी हो सकता है कि जेनेटिक आइसोलेशन इसलिए हो जाए या जीन फ्लो इसलिए रुक जाए कि हमारे पास जो स्पीशीज है उनके दरमियान कोई बैरियर आ गया है. तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि ऑलवेज दिस हैपेंस कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गई इसी वजह से जेनेटिक आइसोलेशन हो गई. ये भी हो सकता है कि हम एक स्पीशी के दो बड़े बड़े सेक्शंस कर दें, एक सेक्शन को मैं कोई बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे ले जाऊं और एक स्पीशी को मैं बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे रखूं. क्योंकि वो सेपरेट हो गए हैं तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है उनके दरमियान जीन फ्लो होना. तो इस तरह से भी जेनेटिक आइसोलेशन हो सकती है. ठीक है. सो अभी हम वो देखेंगे जब हम एलोपैट्रिक स्पीसिएशन देख रहे होंगे. ठीक है. सो अभी तक क्लियर हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन.